گویا اب یہ تمام معاملات طے ہو چکے تھے اور مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں اور ہینرل آرک ان کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اب صرف ایک ہی آرزو تھی دل میں کہ یہ تمام معاملات منصوبے کے مطابق سر انجام پا جائیں اور میں ہینرل آرک کی پوزیشن برقرار رکھ سکوں۔ کئی دن تک اس سلسلے میں مختلف کارروائیاں ہوتی رہیں۔ دل میں ایک آدھ بار یہ خیال آیا کہ اگر کسی طرح آفتاب کمال کو اس بارے میں اطلاع دے دوں تو وہ بھی مصروف ہو جائے گا، لیکن پھر ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ بھی انسان ہے، اپنے طور پر وہاں قدم جمائے ہوئے ہے۔ وہاں میرے لیے اس کی حیثیت ایک مضبوط ستون کی سی ہے۔ اگر اسے کوئی نقصان پہنچ گیا تو میں ذہنی طور پر ختم ہو جاؤں گا، کیونکہ اب اگر دنیا میں کسی شخص سے میرا کوئی ذہنی تعلق رہ گیا تھا تو وہ یہی دونوں افراد تھے۔ میں جانتا تھا کہ تنظیم آزادی فلسطین سے علیحدگی اور میری اس طرح گمشدگی فضا جیبی اور دانشزاری کے لیے بڑی پریشان کن ہوگی، لیکن بہرحال ان لوگوں کو ارل سیڈنا کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل نہیں تھی۔ اس وقت اپنی زندگی بچانے کے لیے یہ سب کچھ بہت ضروری تھا۔ آفتاب کمال کو میں نے اس سلسلے سے لا علمی رکھنے کا فیصلہ کیا اور اپنے طور پر کام میں مصروف رہا۔ کارمن اینجلو سے ٹرانسمیٹر پر ہلکی پھلکی گفتگو ہو جاتی تھی، ویسے بھی اس سے میرا کوئی ذہنی تعلق نہیں تھا، بس یہ نیا فیصلہ اس سے منسلک رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ لیکن بعض اوقات ایسے کام بھی ضروری ہوا کرتے ہیں۔ جیمز کارٹر اور لوئس مارشلی سے تقریباً 11 دن کے بعد دوسری تفصیلی ملاقات ہوئی اور ان لوگوں نے بالکل ہی محدود افراد کے ساتھ مجھ سے میٹنگ کی اور مجھے اس سلسلے میں تمام تفصیلات بتائی گئیں۔ جیمز کارٹر نے کہا، انتہائی محتاط ذرائع سے پلانٹ کے مختلف حصے خلیج بوتھنیا پہنچا دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں مذاکرات رہے ہیں ہم لوگوں کے۔ وہ ممالک چاہتے ہیں کہ پلانٹ کے بڑے بڑے کارٹن ہم لوگ خلیج بوتھنیا کے لیے حاصل کریں، لیکن ہم نے اس بات سے صاف انکار کر دیا۔ یہ ذمہ داری انہی لوگوں کی ہونی چاہیے تھی۔ بمشکل تمام وہ اس پر تیار ہوئے ہیں۔ خلیج بوتھنیا میں ایک خفیہ سٹور حاصل کر لیا گیا ہے جو ہماری ضروریات کے مطابق ہے۔ وہ دونوں شپ چل پڑے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد وہ خلیج بوتھنیا میں ڈیک حاصل کر لیں گے۔ وہاں پر تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور پلانٹ جہازوں پر لوڈ ہونے کے سارے معاملات بھی مکمل ہیں۔ اب بس کچھ آخری معاملات ہیں جو پایہ تکمیل تک پہنچ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے مسٹر ہینرل آرک، اب آپ اپنی ٹیم کے ساتھ خلیج بوتھنیا پہنچ کر وہاں کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ آگے کا منصوبہ آپ کی طرف سے مجھے دیا جائے گا یا مجھے ہی اس سلسلے میں کارروائی کرنی ہے؟ نہیں، منصوبہ آپ کو دیا جائے گا اور اس سلسلے میں ہم فائنل ٹچ بوتھنیا ہی پہنچ کر دیں گے۔ آپ اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ جائیے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصل کام آپ ہی کو سر انجام دینا ہے۔ یہاں تک ہم نے آپ کی ذمہ داریاں بانٹ لی ہیں کیونکہ ہم یہ کر سکتے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وقت سے پہلے آپ کو منظر عام پر لایا جائے۔ میں آخر تک یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ منظر عام پر آئیں مسٹر ہینرل آرک، کیونکہ بہرحال آپ ہمارا خفیہ ہاتھ ہیں۔ ٹھیک ہے مسٹر جیمز کارٹر، تو اب آپ یہ بتائیے کہ مجھے خلیج بوتھنیا کب روانہ ہونا ہے؟ میرا خیال ہے اس ہفتے کے اندر وہاں آپ کے قیام وغیرہ کا بھی معقول بندوبست ہوگا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں کرنا ہوگا۔ نہیں، جو کام آپ کو کسی بھی جگہ مشکل نظر آئے آپ اسے میرے سپرد کر دیجئے گا۔ میں نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، آج ہفتہ ہے، آئندہ ہفتے ہم خلیج بوتھنیا میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ اس گفتگو کے بعد ہماری یہ ملاقات ختم ہو گئی تھی۔ وہ لوگ بھی بہت چالاک تھے، پہلے سے مجھے اپنے منصوبے سے آگاہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ چنانچہ اس ملاقات کے خاتمے کے بعد مجھے یہ تمام تفصیل کارمن اینجلو نے بدستور سنسنی خیز انداز میں یہ تفصیل سنی اور اس کے بعد اس نے کہا، اس سے پہلے میں ڈیمن اینجلو کے ساتھ بوتھنیا پہنچ جاتا ہوں، پتہ نوٹ کرو، وہاں میرا قیام ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم ٹرانسمیٹر ہی کو ذریعہ گفتگو بنائیں اور اسی پر ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں، کیونکہ اگر ان لوگوں کو اس بات کی بھنک بھی مل گئی کہ میں ان کے آس پاس منڈلا رہا ہوں تو وہ محتاط ہو جائیں گے اور اپنا کام کرنے کے بجائے یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں نے ان کے گرد اپنا جال کس طرح بچھایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے مسٹر کارمن اینجلو، تفصیل سے آپ کو آگاہ کر ہی چکا ہوں۔ میرے خیال میں مجھے اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ ایک سوال کر سکتا ہوں ڈیئر سناٹرا؟ ضرور۔ اب جب کہ تم ایک حیثیت حاصل کر چکے ہو اور اتنی کامیابی سے اپنا یہ رول کر رہے ہو کہ میں اور ڈیمن بھی حیران رہ جاتے ہیں، تو کیا تمہارے ذہن میں یہ تصور نہیں ابھرتا کہ تم مجھ سے کنارہ کشی کر لو؟ تمہارے پاس ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ میری نشاندہی کر دو۔ وہ دونوں میری زندگی کے در پہ ہو جائیں گے اور ہر ممکن کوشش کر کے سب سے پہلے مجھے ہلاک کرا دیں گے، اور اس کے بعد تم اپنے مسئلے میں بالکل آزاد ہوگے۔ ہینرل آرک کی حیثیت سے تم ایک شاندار زندگی گزار سکتے ہو۔ کیا آپ نے یہ بات پہلے نہیں سوچی تھی مسٹر کارمن اینجلو؟
ना, मेरी बात का बुरा मत मानो मेरी जान। तुमसे शदीद जज्बाती ताल्लुक महसूस करने के बाद मैंने ये अल्फाज कहे हैं। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा मिस्टर एंजेलो, क्योंकि इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं बिल्कुल पहली और आखिरी बार आपसे ये अल्फाज कह रहा हूँ कि मैं आपका साथ ही पसंद करता हूँ और तन्हा कोई मकाम हासिल करने की कोशिश में मसरूफ नहीं हूँ। मेरी आरज़ू है कि इसके बाद आप इस किस्म की कोई बात मुझसे ना करें। मुझे दुख होगा। आई एम सॉरी माई डियर, आई एम सॉरी। मैं अब तुमसे बोथनिया ही में मुलाकात करूंगा। कार्मेन एंजेलो से सिलसिला मुनक़ता करने के बाद मैंने लोसर ड्रैक से राब्ता कायम किया और उसे तमाम तफसीलात बताई। लोसर ड्रैक ने मुझे इत्मीनान दिलाया कि वो अपनी टीम के साथ बोथनिया मुंतकिल हो रहा है। मैं जब चाहूँ वहाँ पहुँच सकता हूँ, यानी आइंदा हफ्ते जब मैं खलीज बोथनिया पहुँचूंगा तो लोसर ड्रैक मुझसे वहीं मुलाकात करेगा। मैंने से कहा, लेकिन वहाँ अपने कयाम के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी चीफ। खलीज बोथनिया में मेरे बहुत से शनासा मौजूद हैं। वहाँ तुमसे मुलाकात का तरीकाकार क्या होगा? आप बिल्कुल मुतमईन रहें। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो मैं खुद आपको तलाश कर लूँगा। आदमी ये भी बड़ा काम का मालूम होता था और बहुत ज्यादा मुस्तैद और मुतावन था। ऐसे आदमियों की मुस्तकबिल में आरज़ू की जा सकती है, लेकिन हेनल आर्क का ये किरदार मैं हमेशा बरकरार नहीं रखना चाहता था, क्योंकि मुमकिन है कोई ऐसा मरहला आ जाए जब मैं इस किरदार को निभा ना सकूं। जेम्स कार्टर और लुइस मार्शिली से मेरे मुसलसल राब्ते रहे और बिल आखिर मैं एक दिन खलीज बोथनिया के लिए रवाना हो गया। स्वीडन शुमाली यूरोप में बहुत बड़ा सनती मुल्क तस्वुर किया जाता है। इसके मशरिक में बहरा बाल्टिक, मगरिब में नॉर्वे, शुमाल मशरिक में फिनलैंड और जनूब मगरिब में डेनमार्क वाक़ है। खलीज बोथनिया फिनलैंड के शुमाल मशरिक में एक बेमिसाल जगह की हैसियत रखती है। बेहतरीन जाय वक़ुआ और खूबसूरत तर्ज जिंदगी। यहाँ आकर ये एहसास हुआ था कि अगर जिंदगी कभी मौका दे तो कुछ बेहतरीन वक्त यहाँ गुजारा जा सकता है। लेकिन जो वक्त इस वक्त गुजारा जा रहा था वो बेहतरीन नहीं था, बल्कि शदीद जिम्मेदारियों का हामिल था। वैसे तो बहुत से बुनियादी अवामल मेरे साथ थे, लेकिन असल में मैं इस वक्त मोसाद की इस खतरनाक औरत अर्ल सीडना से जान बचाना चाहता था और इसकी वजह से मैंने अपने बहुत से मफादात छोड़ दिए थे। बल्कि ये कहना चाहिए कि वो मेरी राह में मुजाहिम हुई थी। अगर वो एक आम नौयत की औरत होती तो शायद उसके मुकाबले पर आना मुझे निहायत दिलचस्प खेल महसूस होता, लेकिन मुश्किल ये थी कि अभी उसकी नौयत ही मेरी समझ में नहीं आई थी। आखिर वो थी क्या चीज? रोशनी की मानिद बुझ जाती थी और कोई ठोस जिस्म नहीं रखती थी। भला ऐसी किसी चीज पर हाथ डालने का क्या तस्वुर किया जा सकता है? बहरहाल ये सारे मामलात अपनी जगह थे। अगर कभी नीलाटों के जेरे असर आ गया तो फिर होगा मुकाबला सख्त। देखूंगा ये मैडम अर्ल सीडना कितने पानी में है। लेकिन अभी किसी किस्म की जज्बाती हमाकत से गुरेज करना चाहता था। बोथनिया में मेरे दस्ते रास्त लोसर ड्रैक ने ही सबसे पहले मुझसे मुलाकात की थी। उसने मुझे बताया कि मिस्टर जेम्स कार्टर और लुइस मार्शिली यहाँ पहुँच चुके हैं और उसके अंदाजे के मुताबिक कार्टन वसूल कर रहे हैं जिनमें वो प्लांट पैक किया हुआ है। बहरहाल लोसर ड्रैक को मुस्तैद करके मैं जेम्स कार्टर और मार्शिली की तलाश में लग गया। हालांकि लोसर ड्रैक ने मुझे इनका पता बता दिया था, लेकिन मैंने जानबूझकर उन्हें कुछ वक्त दिया और बिल आखिर उनसे राब्ता कायम कर लिया। जेम्स कार्टर ने कहा, हम लोग बेचैनी से यहाँ तुम्हारे मुंतजिर हैं। मैं 2 दिन से आया हुआ हूँ, पता नोट कर लो और इस पते पर फौरन पहुँच जाओ। जेम्स कार्टर बोला। मतलूबा जगह एक निहायत खूबसूरत इमारत थी जो साहिल समंदर पर वाक़ थी और इससे समंदर का हसीन नज़ारा होता था। दोनों दौलतमंद यहाँ मौजूद थे। दोनों ने मेरा पुरतपाक खैर मकदम किया। उनकी दोस्ती भी काफी गहरी मालूम होती थी। लुइस मार्शिली ने कहा, हकीकत यह है कि इस काम में खैर आमदनी तो है ही, लेकिन लुत्फ बहुत आ रहा है। तिल अबीब से एक बहुत बड़ी शख्सियत यहाँ पहुँच चुकी है और वो अपने हाथों से इस प्लांट की रवानगी का इफ्तिताह करेगी। और ये सुनकर तुम्हें खुशी होगी डियर हेनल आर्क के पूरा प्लांट यहाँ पहुँच चुका है और इसका नक्शा हमें आज मिला है। नक्शा? हाँ, मैं समझा नहीं, मैं समझाता हूँ, जेम्स कार्टर ने कहा और एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट निकालकर मेरे सामने फैला दिया। जैसा कि तुम्हें इल्म है कि प्लांट के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ मुल्कों से तैयार होकर आए हैं, उन्हें जोड़ने के लिए एक मुश्तरका तरीकाकार दरकार था। ये ब्लूप्रिंट इसकी नुमाइंदगी करता है। तिल अबीब को इसके साथ इन तमाम मुल्कों के इंजीनियर्स भी दरकार होंगे, लेकिन ये काम उस वक्त तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है जब तक प्लांट तिल अबीब न पहुँच जाए। लुइस मार्शिली ने दौरान गुफ्तगू कहकहा लगाया और बोला, और इसमें अभी तवील वक्त बाकी है। तो मैं ये कह रहा था कि वो मोअज़्ज़ज़ शख्सियत यहाँ आने वाली है। उसके आने से कबल तुम हमें ये बताओ हेनल आर्क कि तुम्हारा मंसूबा कहाँ तक पहुँचा है। इसका बकिया हिस्सा तो आपके पास है मिस्टर लुइस मार्शिली, और मैं इस बात का मुंतजिर हूँ कि जब आप मुझे इसके बारे में बताएंगे तभी मैं ज़हनी तौर पर इसकी सही प्लानिंग कर सकता हूँ। ये मुनासिब तरीन वक्त है क्योंकि हम तमाम राहिल से गुजारने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं
और मेरे दोस्त जेम्स कार्टर का कहना है कि इस काम की मुकम्मल निगरानी की जाए, क्योंकि इसमें हमारी अपनी शख्सियत भी मुलविस हो जाती है। अगर कहीं हमारे मंसूबे में कोई जोल रह गया तो मुश्किल पेश आ जाएगी। मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये सब कुछ होगा किस तरह। हाँ, और ये मुनासिब वक्त है कि हम तुम्हें इस बारे में तफसील बता दें। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि प्लांट तो यहाँ पहुँच चुका है, और वो दोनों जहाज भी जिन पर यह प्लांट लोड किया जाएगा। असल में जहाज का अमला बिल्कुल फेयर है, और इसके बारे में ये समझ लो कि वो सिर्फ अपने काम के लोग हैं। मेरे या हुकूमत इसराइल के साथी नहीं हैं। इनका काम सिर्फ ये है कि हमारी ख्वाहिश के मुताबिक ये प्लांट तिल अबीब पहुँचा दें। मैं इन लोगों के बारे में मुकम्मल तफसीलात मालूम कर चुका हूँ, और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि तुम लोग, मेरा मतलब है ग्रे हाउंड ग्रुप, इन जहाज़ों पर हमारे आदमियों की हैसियत से सवार होगा, और जब हम एक मखसूस पॉइंट पर पहुँच जाएंगे तो ग्रे हाउंड ग्रुप जहाज के पूरे अमले पर काबू पा लेगा और इसे कैद कर देगा। उस अमले को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ग्रे हाउंड ग्रुप के अफराद इन जहाज़ों को मतलूबा जगह तक ले जाएंगे। वो जगह कौन सी है? चूँकि मैं और जेम्स कार्टर इन जहाज़ों पर मौजूद होंगे, हमने ऐसे लोगों को भी शामिल कर लिया है जो समुद्री मामलात में बेहतरीन महारत रखते हैं। वो जहाज़ों को हमारे मंसूबे के मुताबिक उस मकाम पर ले जाएंगे जहां हमें उन्हें महफूज रखना है। इसके बाद 12 से लेकर 15 दिन हम वहां गुजारेंगे। इसके बाद एक सब मैरीन हमें वापस पहुंचा देगी। यहाँ आने के बाद हम हुकूमत इसराइल को इसकी इत्तला देंगे। फिर मैं जानता हूँ कि वो जंगबाज मुल्क अपने तौर पर जहाज़ों को तलाश करने की कोशिश करेगा, और थोड़ा बहुत वक्त यहाँ भी लग जाएगा। काम बहुत लंबा है, लेकिन इसका मुआवजा भी इतना ही लंबा होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसराइल के लिए इस प्लांट की क्या हैसियत है। अभी थोड़े ही अरसे कबल मुझे मालूम हुआ है कि इसराइल एक और प्लांट के सिलसिले में मार खा चुका है, और वो प्लांट पाकिस्तान पहुंच चुका है। रेडमैन नामी एक खतरनाक शख्स से इस प्लांट के सौदे की बातचीत हो रही थी कि दरमियान में कोई साजिश हो गई और प्लांट इसराइलियों के हाथ से निकल गया। इस बार वो किसी किस्म की जख्म नहीं उठाना चाहते, इसलिए उन्होंने ये लंबा मंसूबा तरतीब दिया है। खैर, प्लांट तो उन तक पहुंचेगा ही, लेकिन बारी मुआवजे के इव्ज। मेरा मतलब ये है कि इसमें नाकामी का तस्वुर जरा कम ही है। हम जरा सुस्त रवि से काम करेंगे, लेकिन हैनल आर्क, इसके नतीजे में हमें जो कुछ हासिल होगा तुम उससे खुश हो जाओगे। मैंने वाकई खुशी का इजहार करते हुए कहा, मैं शिद्दत से बेचैनी महसूस कर रहा हूँ जनाब, लेकिन वो कौन सी जगह होगी जहाँ हम जहाज़ों को महफूज करेंगे? तुम सबसे पहले इस बात को जहन से निकाल दो कि इसराइली हवाबाज या उनका जरिया जासूसी इस जगह के बारे में कोई अंदाजा लगा सकता है। तफसील के लिए यूँ समझ लो कि समंदर के इस हिस्से में जहाँ आम गुजरगाहें नहीं हैं और ना ही जहाजी रूट है, ना फजाई, ऐसे वीरान और गैर आबाद जजीरे हैं जिन पर धुंध छाई रहती है और बुलंदियों से भी इन्हें नहीं देखा जा सकता। बस समझ लो वही हमारी मंजिल है। जहाज वहाँ आसानी से रूपोश हो सकते हैं। लेकिन जनाब, आपने ये जजीरे कैसे दरियाफ्त किए? मैंने सवाल किया और जवाब में लुइस मार्शिली कहकहा मार कर हंस पड़ा। फिर बोला, बेशक डियर हैनल आर्क, तुम हमारी मशीनरी में एक अहम पुर्जे की हैसियत रखते हो, लेकिन कुछ काम हमारे लिए रहने दो। ये तफसील ना जानना ही बेहतर है। मुख्तसर यूँ समझ लो कि ये सिर्फ इत्तफाकन था, लेकिन हमने इन जजीरों को अपने लिए इस काबिल बना लिया है कि कोई खासी मौका दरपेश आ जाए तो वो हमारी पनाहगाह बन सके। लेकिन अगर ये कहा जाए तुमसे तो गलत नहीं होगा कि अगर तीसरी आलमगीर जंग शुरू हो जाए और दुनिया मौत की मुट्ठी में चली जाए तो हम जितने अफराद के साथ चाहें अपनी एक अलग दुनिया बसा सकते हैं। चुनाचे वहाँ तक दुनिया की हंगामा खेजियों के असरात नहीं पहुँचेंगे। मैंने आंखें बंद करके गर्दन हिलाई और खामोश हो गया। बहरहाल मंसूबा मेरे इल्म में आ चुका था और इसकी ऊंच नीच पर हम लोगों ने काफी गुफ्तगू की। मैंने जेम्स कार्टर और लुइस मार्शिली को बताया कि मेरे साथ कितने अफराद मौजूद हैं। उन्होंने इस पर इत्मीनान का इजहार किया। मंसूबे की मुकम्मल तफसीलात अब मेरे इल्म में आ चुकी थी। बाकी काम मुझे खुद ही करना था। चुनाचे खलीज बोथनिया के एक ऐसे मकाम पर जहां दोनों जहाजों को लुइस मार्शिली और जेम्स कार्टर के ताल्लुकात की बुनियाद पर बर्थ मिलने वाली थी, मैंने अपने आदमी फैला दिए ताकि वो पहले से अपने काम की तकमील करके तैयार रहें। हालांकि बंदरगाह से उन्हें जहाजों पर लुइस मार्शिली के आदमियों की हैसियत से ही शामिल होना था, लेकिन बाद में जो किरदार उन्हें सरअंजाम देना था वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। और मैंने इस सिलसिले में लोसा ड्रैक से बड़ी तफसीली गुफ्तगू की और उसे सारा प्रोग्राम बताया। लोसा ड्रैक मुस्कुरा कर बोला, चीफ, दर हकीकत तवील अरसे के बाद हमें हमारे शायाने शान काम मिला है। यह शख्स इस प्रोग्राम से बहुत मुतमईन और बहुत मसरूर नजर आता था। बहरहाल अपना अपना तर्ज फिक्र होता है। मैं इस अजीम शान मंसूबे के हर पहलू से पूरी तरह लुत्फ उठा रहा था और अब मैंने अपने जहन से हर किस्म के वसवसे निकाल दिए थे। बस अब देखना यह है कि तकदीर कौन से नए गुल खिलाती है। अलबत्ता मैंने उस इसराइली शख्सियत से मुलाकात से गुरेज किया जो यहाँ आई हुई थी। हर चंद के मेरे चेहरे पर मेकअप था, लेकिन दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है।
मैं हर कीमत पर इसकी निगाहों में आने से बचने का ख्वाहिशमंद था। जेम्स कार्टर और लुइस मार्शेली ने भी ऐसी कोई कोशिश नहीं की थी जिसकी बिना पर कभी मुझे उसके सामने आना पड़ता। वैसे भी मुझे हर तरह से महफूज रखना था उन दोनों को, सो उन्होंने ऐसा ही किया। फिर वो जहाज साहिल से आ लगे जिन्हें एक नाकाबिले यकीन सफर करना था। हमने आम इंसानों की हैसियत से उन्हें देखा। हमारा उनसे फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं कायम हो सकता था, लेकिन हमारे लिए जेम्स कार्टर वगैरह ने तमाम इंतजामात कर लिए थे कि हम अपने जहाजों से सफर करें। लोसा ड्रैक हर पहलू का जायजा ले रहा था और उससे होने वाली गुफ्तगू में हमने ये तय कर लिया था कि किस तरह मामलात पर काबू पाया जाएगा। बिल आखिर जहाजों पर लोडिंग शुरू हो गई। अजीम शान क्रेनें साहिल पर पहुंच गईं और उन्होंने वो बड़े बड़े कार्टन जो फौलाद नुमा लकड़ी की पेटियों पर पैक किए गए थे एहतियात से उठा कर जहाज पर बार करना शुरू कर दिए। दोनों जहाजों की लोडिंग में लोसा ड्रैक के आदमी साथ दे रहे थे और अब उन्हें उन लोगों की हैसियत हासिल हो गई थी जिन्हें उन जहाजों पर ही सफर करना था। लोसा ड्रैक ने मुझे बताया कि बेहतरीन किस्म का असलहा जो बाद में काम आएगा जहाज पर पहुंचाने का माकूल बंदोबस्त कर लिया गया है और लोडिंग खत्म होते ही इसकी फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। अब वो वक्त आ गया था जब मैं कार्मेन एंजेलो से राब्ता कायम करके उसे बाकी इतलात फराहम कर दूं। जब मैंने ट्रांसमीटर पर कार्मेन एंजेलो को मुखातिब किया तो मामूल के मुताबिक उससे राब्ता कायम होने में एक लम्हा भी ना लगा। उसकी आवाज में बड़ी चहक थी।